Yes, am I audible to you now? Sir, you're audible. No, you're not audible. Am I audible now? Yes, you're audible now. Okay. So starting from section number one, हम section number one की तरफ जा रहे हैं और section number one के अंदर the very first important point जो है आपके पास जो है section number one में सबसे topics कौन कौन से हैं section number one के अंदर that is starting from social reformers. Then we have East India Company. Then we have decline of Mughal. Sorry, we have decline of Mughal Empire. Then we have the East India Company. We have that annexation wala part. Then further moving ahead, War of Independence, Sir Syed Ahmad Khan and languages. ठीक है. एक एम्फोसाइज था कि लैंग्वेजेस वाला पार्ट हो जाए तो वो ज्यादा जो है अच्छा हो जाएगा. ठीक है. तो मेरे पास जो एनोटेटर्स के उनके नाम आ रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर के चीजों का खास ख्याल रखें, वो इम्पोर्टेंट है. एनोटेटर्स के नाम आ रहे हैं तो वली प्लीज बिहेव योरसेल्फ, इस चीज को खास ख्याल रखें क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर. आप चाहते हैं कि आपका नाम पूरा लेके पूरे सब जगह यूट्यूब और हर फोरम पे चलें तो फिर आप बोलते चले जाएं. Anyways, we are starting up with the social reformers. Or social reformers may the very first is the Shah Waliullah. You can see this is the Shah Waliullah, the most important person. शाह वलीउल्लाह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि अमंग ऑल थ्री रिफॉर्मर्स में तीन रिफॉर्मर्स थे. सबसे पहले हमारे पास दैट इज शाह वलीउल्लाह, देन वी हैव सैयद अहमद, we have Sayyid, we have SASB, we have SASB Sayyid Ahmad Shahid Bareilwi, then उसके बाद जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह. ये तीन रिफॉर्मर्स हैं और तीनों के रेंजिंग क्वेश्चन बनते हैं, उसको हमने वो भी डिस्कस किया था. शाह वलीउल्लाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मक्का में पिलग्रिमेज के लिए गए थे. ही डीपली थॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स इन द सबकॉन्टिनेंट. एट दैट टाइम मुस्लिम्स वर इन्वॉल्व्ड इनटू द अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस व्हिच हैड crept the Islamic society. मुस्लिम्स जो है morally degenerated हो गए थे और they were spiritually exploited because they did not know what to follow and how to follow the Islamic values and terms, or Muslims were not onto the right path and they had totally forgotten the true messages of Islam. So Shah Waliullah found that Muslims were involved into the un-Islamic practices. In fact, at the time of the birth, marriages and death पे इस time पे un-Islamic practices बहुत ज़्यादा चल रही थी. इसलिए इन्होंने एक formulation पैदा की. Because when he was on pilgrimage तो वहाँ पे he formulated और वहाँ पे साथ साथ he worked onto this कि इन्होंने एक स्कीम चैनल के ऊपर चले कि जिसपे he translated the Quran into the Persian language, which become accessible for Muslims to read and understand. Or this was the biggest achievement of Shah Waliullah because at that time Muslims didn't know. They had the Quran obviously, but they did not know okay, what does Quran is trying to say. For example, if you just go and open up the book nowadays, you will find out everything in tafsir in Quran. There's an entire book for every surah, that interpretation what Allah subhanahu wa ta'ala is going to express us, because we are too much involved into the worldly pleasures. So अल्लाह ने हर एक एग्जाम्पल सेट आउट करके दी और एक ट्रैक दिया हुआ है कि दिस इज द राइट पाथ, दिस इज अ रॉन्ग पाथ. तो इट इज अ कंप्लीट कोर गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है. तो he translated the Quran into the Persian language और जिससे मुस्लिम समझें, अंडरस्टैंड करें. he wrote 51 books interpretation of Quran के लिए. इनका वर्क बहुत ज़्यादा important है. और फिर जब he found out when he wanted the Muslims to work on the basic fundamental principle of Islam. So इसलिए जो है he found that Muslim ulemas were fighting with each other. तो जब उलेमास आपस के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे तो he bring up together the Shia and Sunni ulemas को साथ लेके आए. तो he found that Muslims, Shia and Sunni ulemas are fighting with each other. बहुत ज़्यादा आपस के अंदर जो है वो लड़ रहे हैं. और this was the worst part क्योंकि he wanted कि the ulama should not fight on their whatever the quarrels are. Because at that time the India was going through the very tough times. The Muslims are facing the two terrible situations.
the declining of Mughal emperor, and the Muslims were constantly facing the terrible, they were in the terrible situation. तो जब ये Islamic situation के अंदर they were not united, so he wanted that Muslim Shia and Sunni ulamas should be united, और अपने अपना जो आपने फॉलो करना है करें, बट ऑन वन पेज आप मुस्लिम्स जो है एक इसके ऊपर यूनिटी क्रिएट करना है. तो ही वांटेड के Muslims should work on the basic fundamental principle of Islam. So for that he wrote an account on four caliphs, which was acceptable by both Shia and Sunni ulama. So his work was very much important. So ये इस तरीके से जो है वो काम जो है वो लेके आया. उसके बाद जो है ही तलकीद को भी इन्होंने ही प्रपोज द बेस लाइक इज्तिहाद इन इस्लाम, जिसका मतलब ये होता है कि कंबाइन टुगेदर रहें और डिनाउंस किया तकलीद को. ही बिलीव के मुस्लिम्स की ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एजुकेट करना है, उनको इकोनॉमिक सेंस देनी है, उनको सोशल जस्टिस प्रिवेल करनी है. तो इसलिए इन्होंने मुसलमानों को समझाया पढ़ाया ताकि इमेंसिपेट कर सकें इस मुस्लिम सोसाइटी से कि इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल अब्यूज जो है वो क्या होता है. तो पॉलिटिकली शाह वलीउल्लाह बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी थे, और इनको एक जो सबसे बड़ा थ्रेट आया वो आया मराठन पावर से. एट दैट टाइम मुस्लिम्स वर ऑब्वियसली सोशल इकोनॉमिक इश्यूज भी थे. तो इन्होंने जो है बिकॉज ही वाज अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, तो ही रोट अ लेटर टू द किंग ऑफ पर्शिया अहमद शाह अब्दाली. So Shah Wali letters लिखे. तो with his influence, with this, Shah Wali was able to defeat the Marathas in the third battle of Panipat. तो यहाँ से इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो है मराठास को फारिग किया. Then he was also important, as you know that यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ बनता है, he gave the कॉन्सेप्ट ऑफ अदल एंड तवाजुन. ये बड़ा वो है, इसका मतलब आप जानते हैं कि एक का मतलब होता है जस्टिस और तवाजुन का मतलब है इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इक्वालिटी भाई, इसका मतलब है इक्वालिटी. और ये अदल का मतलब क्या है? अदल का मतलब है जस्टिस, कि भाई इंसाफ. इस दोनों का मतलब मिला के वो शाह वलील्लाह कुल छोटी सी बात करते थे कि मुस्लिम शुड बी फेयर इन देयर डीलिंग. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुसलमान अपनी डीलिंग्स के अंदर जो है ना वो फेयर है, कभी झूठ ना बोले. Just give me a minute. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह, कौन बात कर रहा है? सर शाहिद, मैं बस क्लास ले रहा हूँ, तो ठीक है, मैं आपसे कॉल बैक करता हूँ. ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. फेयर मुस्लिम्स जो है शुड बी फेयर इन देयर डीलिंग्स, और मुसलमानों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि वो एक जो है अपनी डीलिंग्स को जस्टिस के साथ रखें, झूठ बोल के कारोबार ना करें. There is a time, and in fact we are standing in the same time that we believe that if we do not lie we cannot trade. If we cannot sold out, अगर किसी को गलत बना के ना बेचे चीजें तो we cannot work on, तो our products will not be sold out. So Islamic Sharia इस चीज के टोटल खिलाफ है, अगेंस्ट के अंदर है. तो that is also a problem, but शाह वलील्लाह ने लोगों को समझाया कि ये चीज हमारे पॉइंट ऑफ के अंदर नहीं है, हम इस चीज की तरफ बिलीव नहीं करते. यू कैन सी दैट वी हैव 14 मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर. तो वी हैव द 7 मार्क क्वेश्चन एज वेल, कि मैंने आपको बताया था कि व्हाई डिड शाह वलील्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू द पर्शियन लैंग्वेज. पे भी मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ, अगर आप लोग कहें तो. थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन या मैं आपको देता हूँ कि अगर शाह वलील्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई जनाब हमने जो है वो काम करना है, और काम करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है वो उस पर करें, कि अगर इन्होंने सवाल आ जाए कि why he translated the Quran into the Persian language, ज़रूरत क्यों थी? So that Muslim should be on Islamic, मुस्लिम को इस्लामिक नॉलेज मिले, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज एक्सेसिबल हो सके कि इस्लाम कहना क्या चाह रहा है. दूसरी चीज़ जो है मुसलमानों को, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 तो आप ये लिख सकते हैं कि जो है जो अनइस्लामिक सोसाइटी के बारे में आप बता सकते हो. अनइस्लामिक सोसाइटी क्रेप्ट द मुस्लिम्स फेथ, ठीक है. और 3 वैल्यूज ये है कि मुस्लिम शुड फोकस टू पुल आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, पुल आउट ऑफ प्रॉब्लम्स. जो मुसलमान
प्रॉब्लम्स के अंदर थे वो यकीनन ये कि डिसोबेइंग अल्लाह वाले पार्ट में से। और डिसोबेइंग क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता चल जाए कि आप गुनाह कर रहे हो और गुनाह करना आपको पता ही नहीं चले, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज। मुझे पता है कि अगर मैं शराब पीऊंगा और मुझे मालूम ना हो कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों को शराब पीना हराम है, तो दिस इज ऑल्सो कि आई एम इन द डार्क एजेस। अभी तो ये है कि मैं मुझे पता है कि इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड आई एम जस्ट लाइंग टू समवन, तो और मैं फिर वो काम करूं कीप ओइंग द फैक्ट कि मुझे मालूम है कि आई एम डूइंग अ गुनाह, आई एम डूइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो चीज ये है कि नॉलेज होने के बाद आई एम डूइंग इट, और फिर क्योंकि वो मेरा रिटेंशन नहीं कर लगे। एक तो एज ऑफ डार्कनेस है कि गुनाह करके मालूम ही ना हो कि आप गुनाह कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट शावलिया वांटेड टू पुल आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो फिर वो एक एक उसकी चीज वाइब्रेंसी सबके ऊपर चली जाती है। तो भाई दिस इज अबाउट द शाह वलीउल्लाह। आई होप दैट इट्स बीन क्लियर टू यू। ठीक है, आई एम जस्ट मूविंग Yes, टुवर्ड्स yes. अनदर। सॉरी, मैं कह रहा था it's clear. इज इट वेरी क्लियर या इट्स क्लियर? शावली वाला तो पहले से ही बहुत ज्यादा ही क्लियर था मेरे लिए। अभी इतना समझो, ज्यादा पढ़ नया लिया। परसेप्ट करो that it's the very first time you are understanding, because we are going with the reinforcement. So how do you feel it when you are going with the very first time, if you are just taking the class for the very first time of Shah Waliullah? Just take it in that way, because we also have the newcomers that has to be, you know, reinforced honi chahiye. So I'm trying my level best ke hum बोर ना करें लेक्चर को, थोड़ा सा अच्छा एक स्पाइसेस अप भी डालते रहें, और इसलिए आई एम ट्राइंग टू ऐड अप मोर अप इन दैट। और मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं। आई होप यू आर राइटिंग इट अप। इसको सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है। तो देखें, मैं आपको एक तजवीज़ करूंगा, बिकॉज यू पीपल आर अपीयरिंग स्टूडेंट्स। तो लेक्चर को जब सुन रहे हो, पेन चल रहा हो, ये पेन चलता रहेगा, चीज़ें आसानी होती चली जाएंगी। what you're going to do is that you may learn, in fact सुनने से जो है ना आपकी, मैं दो स्किल्स की हमेशा बात करता हूँ, जब वो दो स्किल्स चल रही होंगी तो चीजें बेटरमेंट की तरफ आएंगी। तो नेक्स्ट आते हैं भाई शाह वलीउल्लाह हाजी सैयद अहमद बरेली साहब के ऊपर। सही है। तो बरेलवी साहब जो है वो SASB सैयद अहमद शहीद बरेलवी, SASB सैयद अहमद शहीद बरेलवी। So can anybody I mean, let me discuss it first. So SASB is a revolutionary Islamist in India, or he was a person. He also had the you know, for that fringe benefits wala part, or fringe बोल रहा हूँ. He also had that same what Shah Waliullah thought about. कि जो है Muslims should have the proper guidance, Muslims should have a proper background, Muslims should follow what is obligatory on them, वो तमाम सारी चीजें। तो ये सारे वो काम है जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट है, जो शाह वलील्लाह भी समझते थे कि हाँ ये सही बात है और इसको इस तरीके से ही चलनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, शाह वलील्लाह बिलीव, शाह वलील्लाह सैयद अहमद शहीद साहब समझते थे कि एक अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए जो कि जिहाद वाली अप्रोच है। तो वो जो है वो अप्रोच जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और उस अप्रोच के बगैर जो है वो काम नहीं हो सकता। और उस अप्रोच का जो नाम है वो है जिहाद मूवमेंट, यानी कि फिजिकल इंस्टेंस के साथ जो है वो हमारे पास काम होना ज़रूरी है। तो जो है सैयद अहमद बरेलवी साहब जो है वो दैट इज के ही हैड a very strong force he had created. He launched up the jihad movement। और जो है सैयद अहमद का आपका जो है particularly time he was, इनका जो सबसे important चीज है कि that is about the revival of the jihad movement। and with this jihad movement he
So he wasn't much influenced by Shah Abdul Aziz. Shah Waliullah say he had toward the India पूरे renewal of jihad को उन्होंने बनाया, setup बनाया. I have already given you the 7 mark question why he had started the jihad movement. इस jihad movement को start करने की वजह जो है वो एक ही थी, और वो कौन सी एक वजह थी, वो जो जो वजह आपके पास थी, वो जो जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करने की वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुस्लिम्स वर डीजेनरेटेड और मुस्लिम्स के ऊपर अब एक अटैक हो रहा है. द मुस्लिम्स शाह वलील्लाह के दौर से तो निकल रहा है, मुस्लिम इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं. मुस्लिम्स वर टोटली आउट ऑफ द ट्रैक. मुसलमान चाह नहीं रहे हैं कि वो इस्लाम को प्रॉपर्ली आगे कर सके, करना चाह रहे हैं, मगर उनके बीच में एक वॉल आ रही है जो कि जो है उनको थ्रेट मिल रहा है सिख रूल से. उसके अगेंस्ट जो है शाह वलील्लाह सैयद अहमद चाह रहे हैं कि इनकी इनकाउंटर किया जाए. तो ये यूरोपियन आर्टिलरी वेपनरी ये जहाद मूवमेंट के लिए काम करने के लिए गए. इन्होंने पूरे इंडिया को टूर किया. फिर अच्छा जहाद मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई कि इनफैक्ट द अजान वाज बैंड, द मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इस्लाम. और स्पेसिफिकली चले जाएं तो स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि Muslims are not allowed to offer salam. The pigs were inserted outside the mosque के अंदर जो है pigs जो है insert किए जा रहे थे. ये भी बहुत वर्ष थी. Namaz was banned. Now this was not tolerable. तो Muslims should not have a proper एक institution जहाँ पे वो इस्लाम को practice करें, openly preach कर सकें. तो Muslims are suffering a lot. और उनके साथ साथ rapes cases, disrespect, व्हीलिंग का फाड़ना, मतलब पर्दे का, और उनको डिसरिस्पेक्ट करना, खड़े खड़े बाजारों के अंदर इज्जत लूटना. दिस वाज अ वेरी वर्स्ट. तो आइडियोलॉजी थी जिहाद मूवमेंट को लेके आया जैसे कि, और अगेंस्ट सिख रूल के ऊपर. तो एक डेवलप नेटवर्क बनाया 1926 के अंदर. ही प्रोवाइडेड द इस्लामिक चैलेंज सिख एम्पायर को. उनको अल्टीमेटम भेजा कि भाई हम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो वरना हम अटैक करेंगे. रणजीत सिंह ने उनको अटैक किया, और अटैक करने के साथ साथ जो है इन्होंने 26 के अंदर 1826 के अंदर पहले हेडक्वार्टर्स बनाए पेशावर के अंदर. रणजीत सिंह को मैसेज भेजा मगर नहीं हुआ. बट शाह वलील्लाह सैयद अहमद वाज सक्सेसफुल इन द बैटल ऑफ ओकाड़ा एंड हजरत. ना जो लोग इनको ज्वाइन नहीं कर रहे थे जिहाद मूवमेंट ने, उन लोगों ने भी इनको जो है वो ज्वाइन कर लिया. और विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्वाइन करने के साथ साथ जो है ना, ज्वाइन करने के साथ साथ जो है व्हाट ही डिड, ज्वाइन करने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इन्होंने ये की कि लोगों को ये डर था कि रणजीत सिंह से, मगर लोगों को मोटिवेशन हुई जो नवाब आमिर खान की भी आर्मी थी, उन्होंने भी ज्वाइन किया. मगर अचानक से इनके दरमियान में एक जो नाम था रणजीत सिंह, वो यार मोहम्मद खान, विच ही वाज अ पठान चीफ. उनको मालूम नहीं थी ये बात कि जो इस तरीके से हो जाएगा. एक ये एलिमेंट था, वो काम नहीं. ही डिजर्टेड टू द बैटलफील्ड. कियोस एक हुआ. यार मोहम्मद खान ने इनके अगेंस्ट जो है को बाद में मारा गया. ही फर्स्ट ट्राइड टू पॉइजन सैयद अहमद, और उसके बाद वो उनकी डेजर्ट करके ले गया बालाकोट में अचानक से एकदम से जब हेडक्वार्टर चेंज होते हैं तो सरप्राइज अटैक होता है 1831 के अंदर. इसमें आपको पता है टीटू मीर भी मारे जाते हैं, और ही किल्ड ओवर देयर. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द सैयद अहमद शहीद बरेलवी. और इनके जो है 7 मार्क के क्वेश्चन भी हैं कि जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए, व्हाई ही लेड अप द जिहाद मूवमेंट, और particularly he was from the oppressive and cruel rulers of it. He had lead up the oppressed lives, और फिर तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने वो सब देखना. तो इट वाज इल ट्रीटमेंट, ह्यूमिलिएशन, और वो मुसलमानों के लिए प्राइड रिस्टोर करना चाहते थे, इज्जतों को बचाना चाहते थे, मुस्लिम्स की इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते थे. सो दिस वाज ऑल द एलिमेंट व्हिच वाज इम्पोर्टेंट थ्रू द डेट जहाँ तक वो काम हो सका. तो सिख रूलर से इनका चैलेंज था. तो ही हैड अ फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल अपार्ट फ्रॉम के जो spiritual होती, like that Shah Waliullah had, Sayyid Ahmad had a very fine approach. So this was all the part of here till the now. Do you have any questions? To please do ask me. Thank you very much.